Hello everyone. Good morning children. How are you all? I hope you all well. So, today we are going to start lecture number 8 of chapter 11. Social responsibility of business, right? So, come to the page number 123. On that page, chapter number 11. Just a second. Yes, here. So, as we all know that कि ये चैप्टर है अभी हमारे कोर्स में नहीं है एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. अगर आप लोगों ने वो नोट देखी है पीडीएफ तो उसमें ये चैप्टर एक्सक्लूड किया है, राइट? बट स्टिल वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड जनरल पर्पस. एंड मे बी इन स्कूल एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट नहीं आएगा, बट मे बी 1 और 2 मार्क का आ गया तो 99.99% डैम श्योर नहीं आएगा, बट स्टिल सो ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे ही है. तो बाकी जो बचे 2 to 3 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर वी विल बी डन इन विद इन 2 to 3 लेक्चर्स, राइट? सो आपको ये नहीं सोचना है कि ये चैप्टर अगर कोर्स में नहीं है तो फिर हम क्यों करें. नहीं, आपको करना है ये, क्योंकि स्कूल में से ही बोला है कि हमें पूरा कोर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना है ये चैप्टर, पर स्टिल पढ़ना है आपको. फेयर नोट भी बनानी है, वर्कशीट भी बनानी है, सिर्फ एग्जाम में लर्न नहीं करना है ये चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट वी रिवाइज द चैप्टर एंड देन वी स्टार्ट द करंट टॉपिक इन टुडेज लेक्चर. So we had done already following the topic. First, the social responsibility concept of business. Then, definition of social responsibility. Then, social responsibility towards a stakeholder, including internal stakeholder and external stakeholder. Internal stakeholders means a group which is connected with the association or business association directly and a part of our management. An external stakeholder means a group of members or association or parties. In short, a single group which is indirectly connect with a business association and are not a part of our management. That is external, जो indirectly connected है, और internal जो directly connected है, right? So internal stakeholder includes the owner, investor and employee, whereas in external stakeholder includes the government, supplier, customer, society, etc. So from the 7 to 8 lectures हमने बहुत बार ये रिवाइज किया है. सो आई होप नाउ यू ऑल क्लियर अबाउट दिस, व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल, व्हाट इज स्टेक होल्डर and which type of responsibilities of different excuse me. So yes, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, कि आप अब सब लोग क्लियर हो गए कि भाई विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द different stakeholders, right? Okay, good. So now come to the page number 127. So in last lecture हमने ये टॉपिक आधा ही छोड़ दिया था, social responsibility of business towards the society, right? In this topic we had done 3 points in last lecture and now we start from the fourth, but before that we just revise that 3 point and then we start from the fourth point, ताकि हमारा जो टॉपिक था, जो लिंक थी, वो कंटिन्यू रहे, राइट? ओके, सो द मैनेजमेंट एक्सपर्ट
Mr. Peter F. Drucker said that the management of any business unit should be done in such a way which brings the balance of interest between the unit and the various section of the society. See, पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है जो थे, सॉरी, उन्होंने क्या बोला है, द मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस यूनिट, कोई भी बिजनेस यूनिट का मैनेजमेंट शुड बी डन इन सच वे, किस तरह होना चाहिए, तो कि इस तरह होना चाहिए कि विच ब्रिंग्स द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द यूनिट एंड द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि हमारा बिजनेस यूनिट का और सोसाइटी का दोनों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, ऐसे हमें मैनेजमेंट करना चाहिए. And in technical language, we can say that the management of any business unit should be done in such a way which brings a balance, maintain a balance between the unit and various section of society. Clear? Good. The business management has to maintain economical and social interest of the society. सोसाइटी का दोनों टाइप का इंटरेस्ट हमें सेटिस्फाइड करना है, इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली. व्हाट इज इकोनॉमिकली एंड व्हाट इज सोशली? हम ये गार्डन बनाते हैं, फिर दूसरे सेमिनार्स रखते हैं, उनके राइट के लिए हम कुछ लड़ते हैं, तो दैट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड हम परफेक्ट प्राइस मीन्स अफोर्डेबल प्राइस में गुड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे और प्राइस भी ज़्यादा नहीं रख रहे, सो दैट इज़ इकोनॉमिकली. फिर हम हमारे एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल, बिकॉज no doubt employee is an internal stakeholder, but we can say that that is a one kind of part of society, because वो रहते तो सोसाइटी में ही है, राइट. नो डाउट वो इंटरनल स्टेक होल्डर है, स्टिल हम उनका एग्जाम्पल सिर्फ ले सकते हैं यहाँ पे. So following are the responsibility of business towards the society. First one is the preservation of environment. Environment को preserve करना, social और economic. Social. This one is social interest of society. Environment को हमें preserve करना है, उनको बचाना है, उनको protect करना है. So जितनी पॉसिबल है उतनी हमें प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करनी चाहिए, कैसे मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, इको फ्रेंडली. नेक्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. सी, डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ यूनिट. हमारे नेशन का डेवलपमेंट करना मीन्स द यूनिट का प्रोग्रेस करना, साथ में पर्सनालिटी भी डेवलप करना, बोथ कंबाइन होता है, उनका जो रिजल्ट मिलता है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. And a unit have to contribute in development of a nation through optimum utilization of financial resource. Optimum utilization means क्या? What is the meaning of optimum utilization? That is the maximum utilization of resource. That is optimum utilization. Then the third one is to give the importance to the research program. जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. That is the third responsibility of business towards the society. So industrial research contribute to the development of a nation. Business unit of a developed countries are using the some share of their profit in researches and try to keep the unit at a prime position in international competition. Thus, the unit have to give importance to the research and have to produce the goods and services as per the needs of society. मार्केट को रिसर्च करना चाहिए कि मार्केट में भी क्या ट्रेंड है, क्या फैशन है, क्या कस्टमर को चाहिए, उनकी डिमांड क्या है. हम अपनी तरह से गुड्स मैन्युफैक्चर करते ही जाए, बट ये तो देखो कि ये कस्टमर को चाहिए या नहीं. हमें ऐसे गुड्स, ऐसे सर्विस प्रोवाइड करनी है कि जो उन लोगों को चाहिए. तो उनके लिए जो रिसर्च प्रोग्राम चल रहे हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. देन ओनली वी नो अबाउट द मार्केट सिचुएशन. Then the fourth one is the helpful during the emergency. So now we start the current topic and we done the revision. Okay. So point number 4, helpful during an emergency. In the situations such as natural calamities, the unit have to perform social responsibility by being helpful to the government and semi-government organization. See,
whenever any natural calamities happen, right? So at that time पब्लिक को हेल्प करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों? बिकॉज जहाँ पे भी वो एक्चुअल इवेंट जहाँ पे भी घटी है, वो घटना जहाँ पे भी हुई है, वहाँ पे सिचुएशन टोटली डेंजर होगी, इकोनॉमिकली, सोशली, सब. तो एट दैट टाइम बेसिक नीड्स जो उनकी है वो सेटिस्फाइड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन दैट सिचुएशन आवर बिजनेस हैव टू कंट्रीब्यूट. सो हमारी वैसे भी जो बिजनेस की इमेज है वो भी बढ़ेगी, हमें भी थोड़ा बेनिफिट होगा और सोसाइटी को भी हेल्प होगा. तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो ये सब सिचुएशन में पब्लिक को हेल्प करती, तो हमें उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि वैसी सिचुएशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए. सो दैट इज़ अ इमरजेंसी इवेंट एंड इन दैट सिचुएशन हेल्पफुल होना चाहिए. This one is also very important. Responsibilities are business. और हाँ, हेल्प ऐसे नहीं करनी कि सबको दिखाने के लिए, एक्चुअल में हेल्प करनी है. Then the next point is the conservation of social and cultural heritage. See, conservation of social and cultural heritage. वैसे भी हमारे इंडिया का हम देखें तो हमें तो बहुत सा मिला है अच्छा हेरिटेज में, राइट? तो उनको हमें अच्छे से रखना है, ना कि उनको बिगाड़ना है. Like the units have to oversee about the conservation of social and cultural legacy of the nation through their product or service. Have to use such a broadcasting mediums and ideas through which the cultural value does not hinder. हमें ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ करना चाहिए, ऐसे मीडियम का कि जो हम कल्चरल वैल्यूज़ है, हमारे कल्चर की जो वैल्यू है, राइट, उनके थ्रू जो आइडियाज़ है वो दे सके और उनकी वैल्यू है वो कम ना हो. फॉर एग्जाम्पल, डिपिक्शन ऑफ द obscenity or the apartheid concept should not be involved in advertisement. So, do you know the meaning of depiction of obscenity or apartheid? Listen. Means obscenity means the obsolescence of language and behavior. And the apartheid means कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए कि जो कोई भी मीन्स कास्ट हो, पर्सन हो, रीच, पुअर, ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखानी चाहिए उसमें, राइट? दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि हमारी कोई भी एडवर्टाइजमेंट में ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए. So fourth and fifth point, helpful during an emergency and the conservation of social and cultural heritage, complete. Just read from the textbook. Fourth point, helpful during an emergency. In a situation such as natural calamities, the units have to perform social responsibility by being helpful to the government and semi-government organization. Then the point number 5, conservation of social and cultural heritage. The unit have to oversee about the observation of social and cultural legacy of the nation through their products or service. Have to use such a broadcasting medium and ideas to which the cultural value does not hinder. For example, depiction of obscenity or the apartheid concept should not be involved in advertisement. Now you all clear about what is the meaning of depiction of obscenity or apartheid concept, right? Then the point number 6, participation in social encouragement. Social development is not possible without the equality in a society. जब तक सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी, टिल दैट सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. बिकॉज सोशल डेवलपमेंट में हमें कोई पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर क्लास का डेवलप नहीं करना है, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है. And for that we have to manage equality in society, then only we can develop our society.
So the social equality is achieved through the procurement of a proper opportunity in each community. See, यहाँ पे वही बात की है, हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. The business unit have to be helpful in development by providing proper opportunity to the weaker section of the society. So साथ ही साथ बिजनेस यूनिट को वीकर सेक्शन को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, नहीं कि ओनली हायर क्लास को, सबको सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. देन ओनली वी कैन से दैट कि procure the proper opportunity to each community and then only a social development had been done. ओके, तो हमें ये भी एनकरेज करना चाहिए सबको, इनके लिए भी, और इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए. अगर हम नहीं कर सकते तो अगर कोई और इस तरह के प्रोग्राम्स करे तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. दिस वन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर बिजनेस. देन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जितना पॉसिबल है उतना ऐसे एरिया में हमें बिजनेस डेवलप करना चाहिए जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. बिकॉज अगर हम वहाँ पे हमारा बिजनेस यूनिट अगर डेवलप करेंगे देन वहाँ के जो लोग हैं उनको हम काम दे पाएंगे वो फैक्ट्री या वगैरह में, तो ऐसे हम एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकते हैं, राइट. सो बाय अचीविंग अ प्रोग्रेस यूनिट शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. National growth ratio NGR and national equality can be achieved through employment opportunities, because now we can see that in rural areas and area which is near to rural, many unemployment person बैठे हैं, right? उनके पास कुछ काम नहीं है. So if we establish a business unit in that area, then we can provide a best opportunity of employment to that person. तो हमें ये भी करना चाहिए. देन पॉइंट नंबर 8, मेंटेन ह्यूमन राइट्स. इट बिकम अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द यूनिट टू मेंटेन द नेचुरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स. Constitution human rights, there are 6, right, which we have done in chapter number 9. In the natural human rights means किसी को हेल्प करना है, जो हमारी ह्यूमनिटी दिखाती है वो. सो ये भी मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो हियर वी डन दिस टॉपिक. सो देयर आर 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी. द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. सेकेंड, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. थर्ड, गिव इम्पोर्टेंस टू रिसर्च प्रोग्राम. फोर्थ, हेल्पफुल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. फिफ्थ, conservation of social and cultural heritage. Point number 6, participation in social encouragement. 7, creating employment opportunity. And the point number 8, that is a maintain human right. See, here we done this topic and now move to the next topic. But before that, you just read the point number 4, 5, 6, 7, 8. You have 1 minute for this 5 points. You just go through the point, not in detail, just go through. Then we'll start the business unit and preservation environment. Okay? Now मेरी स्पीड बहुत स्लो है तो आप लोग भी कंफर्ट होगे. So fast reading complete करो. You have the 1 minute. You have just 1 minute. Okay, done? Good. So come to the next point. Business unit and preservation environment.
सी नाउ ओनली 3 टॉपिक्स बचे ये चैप्टर में. So point number 11.3, business unit and preservation environment. When the world is facing a very difficult problem of global warming and action have been taken for its resistance, the business unit must have to participate in it. जब पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम की में फेस कर रहा था और दैट टाइम हमें उनको रोकने के लिए फॉर इट्स रेजिस्टेंस को हमें ये एक्शन लेने चाहिए और उसमें हमें हमारे बिजनेस यूनिट को पार्टिसिपेट होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए. It becomes a social responsibility for a unit to abide by the environmental standards enacted by the government. और ये हमारे बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ने जो जो एनवायरमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाए हम उनको फॉलो करें. वी हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड विच इज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, विच वॉज सॉरी. तो हम एनवायरमेंट को भी हेल्प कर पाएंगे और उनके थ्रू हम ग्लोबल वार्मिंग के सामने भी जो भी डिफ़िकल्ट कंडीशन होगी वो इजीली फेस कर लेंगे. So when a world is facing very difficult problem of global warming and action have been taken for its resistance, the business unit must have to participate in it and it become a social responsibility of a business unit abide by the environmental standards enacted by the government. यही बोला है इसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमें वो सब स्टैंडर्ड जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट ने बनाए वो फॉलो करने चाहिए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम में जब वर्ल्ड फेस कर रहा हो तो हम उसमें कुछ हेल्प कर सके, हमें वो नहीं करना पड़े फेस. कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम कब आती है? जब हम एनवायरमेंट को अच्छे से ध्यान नहीं रखते, उनको प्रिजर्व नहीं करते, देन ओनली. अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ आता ही नहीं. So as a part of social responsibility, a business unit has to make it business with consideration of 4 different sectors of environmental preservation. So 4 types के different sectors consider करना है. First one, land and forest preservation. First क्या है? हमें land और forest को preserve करना है because forest is a part of our environment. और अभी आप देख रहे हो कि बहुत forest कट हो रहे हैं, right? So first one is the land and forest preservation. Second, preservation of water resource like rivers, ponds, sea. उनको क्लीन रखना चाहिए, ना कि उनको बिगाड़ना चाहिए सब डाल के उसमें. Then preservation of air and other gases. हो सके इतना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनानी चाहिए फैक्ट्री में भी ताकि उनके जो स्मोक है वो हवा में ना जाए और एयर है वो पॉल्यूट ना हो. So preservation of air and other gases. Then preventing noise pollution. अब देखते हो ना अभी यंगस्टर सब जब भी रास्ते पे निकलते कितने हॉर्न बजाते हैं जितनी उनकी ज़रूरत ही नहीं है. That is a kind of noise pollution. So preserve the forest and land, preserve a water resource, preserve of air and other gases, and also prevent a noise pollution. These 4 kind of different sectors of environmental preservation which are considered by a business, right? So these are the responsibility of business unit for environmental preservation. So these 4 points will be done in detail explanation in next lecture. And here we discuss some other important topics which is important for exam also and other topics also. So first मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वैसे तो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ आपको कि आप रेगुलर वीडियो देखते या नहीं, राइट? हाँ, और अभी तो आपके पास वो PDF भी आ गई है ना जिसमें कोर्स कट हुआ है, बट आपको वो नहीं देखना है. अभी आपको वो PDF तभी देखनी है व्हेन विल योर एग्ज़ाम कम. जब आपकी एग्ज़ाम आए तभी आपको वो PDF देखनी है कि भी मुझे कौन सा चैप्टर अभी लर्न नहीं करना है बट पढ़ना सब है.
राइट? अदरवाइज मैं क्यों आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करूँ? कुछ इंपॉर्टेंट्स होगा तो ही ना। एग्जैक्ट। सो हमें पढ़नी पूरी टेक्स्ट बुक है, सिर्फ लर्न नहीं करना। सब लर्न वो ही करना है जो एग्जाम में आना है। ओके? सो आपको अच्छे से समझना है सब चैप्टर्स, ताकि आपको 12th स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्कूल कब खुलेगी हमें किसी को आइडिया नहीं है, ना तो आपको और ना तो हमको। व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड व्हेन अ स्कूल विल स्टार्ट, तब तक तो हमें घर पे ही पढ़ना है और सब पढ़ना है। सो आपको यहाँ से जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं वो सभी लेक्चर्स आपको देखने भी हैं रेगुलर, एंड होमवर्क भी करना है रेगुलर, और सबमिट करो होमवर्क, अदरवाइज आपके इंटरनल मार्क्स है वो बहुत कम हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि मैंने इतना सारा किया था, इतने अच्छे से पेपर में लिखा था, स्टिल आई गेट नॉट गुड स्कोर। क्यों हमारा स्कोर कम आया? बिकॉज आपके इंटरनल मार्क्स कम थे। एंड इन दिस सिचुएशन, आई मीन टू से दिस कोरोना सिचुएशन, योर रिजल्ट मोस्टली डिपेंड्स ऑन योर इंटरनल मार्क्स, बिकॉज एग्ज़ाम तो ऑनलाइन आती है। सो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें इंटरनल मार्क्स है वो बहुत काम करेंगे। सो बेटर है कि आप रेगुलरली सबमिट योर होमवर्क, योर फैबुक, टेस्ट रेगुलर दो, अच्छे से दो, एंड सी द वीडियोस रेगुलरली। ओके? एंड आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, सो आई होप कि आप मेरी जो एडवाइस है वो सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे, नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, बट मैं आपको सब सब्जेक्ट का बोल रही हूँ। एंड कोई स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करो, दैट्स आई यूज टू हिंदी फॉर दैट स्टूडेंट्स हु कांट अंडरस्टूड थ्रू आउट इंग्लिश। सो अभी उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो मैं हिंदी भी यूज़ कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है? सो ये वी डन टूडेज लेक्चर, एंड विल बी done this detailed explanation of this topic in next lecture. Okay? And maybe in next 1 or 2 lecture this chapter will be done, and then we'll start a new chapter. So फेयर बुक अगर अभी स्टार्ट नहीं की तो बनाने लगो, क्योंकि नेक्स्ट जो भी पेरेंट्स मीटिंग होगी उसमें मैं फेयर नोट मंगवाने वाली हूँ। सो अभी से स्टार्ट कर दो, और होमवर्क भी करने लगो। मैं होमवर्क भी रेंडमली चेक करूँगी। सो बेटर है अभी से स्टार्ट कर दो। होमवर्क किसी के नहीं आता है। ओके? चलो, गुड बाय एवरीवन।